this discussion of your PL/SQL part. So this is an important topic in case of your Oracle. Yeah. हमने सभी ने SQL पढ़ी है बेटा, SQL आपने स्टार्ट भी कर लिया है। वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, उसमें कोई भी कोडिंग नहीं है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि आप जब क्वेरीज एग्जीक्यूट करते हो तो वो एक ही क्वेरी होती है, जब आप सेमीकोलन से उसको एंड करते हो तो आप उसे एग्जीक्यूट कर लेते हो। दैट मीन्स द SQL पार्ट has nothing to do with the programming part. So to add programming into the SQL, PL/SQL was developed, क्योंकि ultimately जो SQL थी वो सिर्फ structured query language थी और उसमें programming part missing था. There was no option of any kind of programming that could have been done on your SQL. So what happened was that to include the programming part, the programming language was included in your SQL, and that's why the name PL/SQL came into existence. इसलिए ये जो SQL की जो पावर है उसको बढ़ा देता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो सिर्फ और सिर्फ पहले स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की तरह ही कर रहे थे। अब उसमें एक चीज और आ गई कि उसकी प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। दैट मीन्स उसमें प्रोग्राम्स के थ्रू एग्जीक्यूशन भी हो सकती है। सो विल डिस्कस द PL/SQL पार्ट इन दीज ट्यूटोरियल्स ओनली. And I discussed in the morning also. If anyone is having any problem in the morning lecture, they can write on chat if anyone is having it. Otherwise, I'll move on to the PL/SQL part only. Okay, I'll be continuing with the PL/SQL part only. PL/SQL stands for the Procedural Language SQL. That means procedural language for PL. SQL is your again structured query language. And programming language या procedural language, it enhances the capabilities of SQL. Capabilities इसलिए बढ़ गई because पहले SQL सिर्फ और सिर्फ query language ही थी, and it had no option of programming. There was no other option through which you can do programming into the SQL. So to include that, a procedural language PL was made a part of SQL, and you are able to do a small programming in your SQL part also using PL/SQL. ये तो बेटा इसकी बेसिक है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो पहली लाइन में ये बताओ पहले तो। Okay, I'll move further then. PL/SQL extends SQL by adding constructs found in the procedural language, resulting in structural language that is more powerful than SQL. क्योंकि इसमें procedural language में कुछ एक ऐसा part हो रहा है जिसमें कि प्रोग्रामिंग पार्ट इंक्लूड हो गया, इसलिए उसने उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर दिया, उसमें नया कंस्ट्रक्ट ऐड कर दिया, और इससे SQL की पावर भी बढ़ गई. पावर मीन्स नाउ द SQL which was only concentrated towards your this structured query language, it was only considered as that. Now it will be even used for programming part also. So इसमें थोड़ा सा बेनिफिट हो गया इसमें. PL/SQL is Oracle's procedural extension to the industry standard SQL. जो SQL का वर्जन आ रहा था उसके नए वर्जन में इन्होंने क्या किया, PL/SQL पार्ट उसकी एक्सटेंशन की फॉर्म में एड अप कर दिया. And when they added up with the extension of this SQL, that was called as PL/SQL. PL/SQL naturally, efficiently and safely extends SQL. एक तो naturally करता है क्योंकि ये SQL से related है. Efficiency उसकी बढ़ा ही रहा है क्योंकि प्रोग्रामिंग पार्ट या प्रोसीजरल पार्ट उसमें और एड अप हो रहा है, और इसी तरह वो SQL की कैपेबिलिटीज को बढ़ाता जा रहा है. Its primary strength is in providing a server-side stored procedural language that is easy to use. इसका मेन पर्पस या मेन स्ट्रेंथ ये है कि ये सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग बढ़ा रहा है. इसमें स्टोर्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज की फॉर्म में दैट इज इवन इजी टू यूज एंड इजी टू लर्न, और ये जो SQL की कैपेबिलिटीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. सीमलेस विद SQL, देन योर रोबस्ट, पोर्टेबल एंड सिक्योर, ये सारी चीज़ें ये इसकी स्ट्रेंथ है जो कि एक SQL में और एनहांस कर दी गई थ्रू योर PL/SQL. Its primary strength is in providing a server-side stored procedural language that is easy to use. Number one, seamless with SQL means totally SQL के साथ related है और उसके साथ ही एग्जीक्यूट हो सकती है. रोबस्ट है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो इजीली, इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो चेंजेस को.
Okay, I think so now everyone is able to listen to me again. So there was some network problem. Okay, moving on to the further of PLSQL. Thus, it offers a platform for robust, high-performing enterprise applications as well as for Oracle applications. एक तो ये है कि ये कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्रामिंग के थ्रू डाटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग की एडवांटेजेस लेना चाहते हैं इन योर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक तो उनके लिए ये एडवांटेजेस है। प्लस जो ओरेकल के ऊपर एप्लीकेशंस बनी हुई हैं उनके लिए भी पीएल एसक्यूएल जो है उनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। सर्वर साइड पीएल एसक्यूएल नीड्स नो एक्सप्लिसिट इंस्टॉलेशन और लाइसेंसिंग। जब आप नॉर्मली ओरेकल का लाइसेंस लेते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आपको पीएल एसक्यूएल का भी क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल है उसको भी यूज करने की साथ ही लाइसेंसिंग मिल जाती है। यू डोंट नीड टू बाय separately for your this PLSQL part when you are buying your Oracle product. इसलिए PLSQL की ये जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट आ रहा है। Although SQL is very powerful tool, it's a set of disadvantages prevent it from being a fully structured programming language. है चाहे बहुत powerful है, but still ये हम इसको fully structured programming language नहीं कह सकते because इसकी भी अपनी तरह की disadvantages हैं, limitations हैं। ये बहुत अच्छे तरीके की बहुत high scale की programming नहीं कर सकते हो। It gives good performance and efficiency in case of small programming, small logic, but when you move on to some complex these programming skills, in that case PLSQL is not at all successful. जहाँ पे complexity बढ़ती जाती है प्रोग्रामिंग की वहाँ पे PLSQL बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। छोटा प्रोग्राम हो, छोटा मोटा लॉजिक हो, वहाँ पे तो इसके प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है सफिशिएंटली गुड हैं और आपको अच्छी एफिशिएंसी दे रहे हैं। For fully structured programming language, Oracle provides PLSQL. पूरी structured language को provide करते हुए PLSQL को भी साथ provide करता है। And it is a block structured language that enables to combine the power of SQL with the procedure statements. SQL की पावर को procedure statements के साथ combine करके जो कि PLSQL blocks की फॉर्म में लिखते हैं हम उसको इसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस ओवरऑल पावर को बढ़ा देते हैं। इसकी अब जो प्रोग्रामिंग पार्ट इंक्लूड होने से यू आर बेटर एबल टू यूज SQL along with PLSQL to do some kind of programming also. So इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इसकी बेटा, इंट्रोडक्शन क्लियर है? एनी क्वेश्चन अपील हियर? Okay, moving on further now. Any question regarding this you can ask me on your chat. Anyone? You can even write down a message like clear. Few of you can write it. Okay, I'll move further. PLSQL block structure of PLSQL, it consists of your anonymous block and subprogram section. It has two major sections block structure में। जो anonymous block है उसमें आगे से 4 sections होते हैं and I'll show you the actual this block structure in the next PPT. One is your declaration blocks जिसमें कि जैसे आपने C++ या C पढ़ ली है उसमें आप स्टार्टिंग में वेरिएबल्स डिफाइन करते हो और उसके साथ उसकी डाटा टाइप बताते हो। सो यहाँ पे भी डेक्लेरेशन ब्लॉक में आप वेरिएबल्स डिफाइन करोगे और उसकी डाटा टाइप बताओगे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एनोनिमस ब्लॉक के केस में पहला सेक्शन रहेगा। एग्जीक्यूटेबल सेक्शन वो होगा जिसमें कि एक्चुअल में आप कोड लिखते हो, जिसमें आप इवन मैथमेटिकल कुछ अगर आपने कैलकुलेशंस के लिए लिखना है वो भी लिख सकते हो, और कुछ भी अगर आपने कोई लॉजिक लिखना है वो सारा एग्जीक्यूटिव सेक्शन में आप लिखोगे। एक्सेप्शन सेक्शन में आता है कि जहाँ पे एक्सेप्ट मीन्स ये बाकी चीज़ों के लिए वैलिड है एक्सेप्ट एक चीज़ को छोड़ के। यहाँ पे एक एक्सेप्शन सेक्शन रहता है प्रोग्रामिंग में जिसमें कि आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूटिबल सेक्शन की जो है वो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। अगर ये चीज़ सपोज एग्जांपल है ए की वैल्यू 1 है तो सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिबल सेक्शन में जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ए की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है तो उस केस में एक्सेप्शन सेक्शन चले और उसमें लिखा हो कि ये चीज़ मतलब कोई प्रॉपर मैसेज दिया हो।
सो वो एक एक्सेप्शन सेक्शन आता है, आगे हम इसका एक एग्जांपल करेंगे, उसमें और क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। एंड सेक्शन मींस आप जब पूरा का पूरा ये कोड लिख लेते हो तो उसको एंड करना बहुत जरूरी है, सो दैट ओरेकल का इंजन जो है उसे पता लग जाए कि प्रोग्रामिंग अब एंड हो गई है और इतना ही कोड था जितना एग्जीक्यूट होना था टोटल, दैट इंक्लूडेड योर डिक्लेरेशन ब्लॉक, एग्जीक्यूटेबल एंड योर एक्सेप्शन पार्ट। सो एनोनिमस ब्लॉक के केस में हम इसको पढ़ेंगे। आगे इसका ब्लॉक स्ट्रक्चर देख लो। मैंने ऑलरेडी बताया था डिक्लेयर में डिक्लेरेशन ऑफ मेमोरी वेरिएबल्स, कोई कांस्टेंट्स, कोई कर्सर्स होंगे, कोई और भी चीजें होंगी जो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी हो पहले ही। डिक्लेरेशन सेक्शन में आप उसे कुछ लाइंस ऑफ कोड में आप उसे डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। डिक्लेरेशन सेक्शन में हमेशा डिक्लेरेशंस होंगी, चाहे वो वेरिएबल की हो, चाहे कांस्टेंट की हो, चाहे कर्सर की हो, चाहे ट्रिगर्स की हो, इन सारी चीजों के करस्पॉन्डिंग आप डिक्लेयर करोगे। दिस द फर्स्ट ब्लॉक। सेकंड जो बिगिन के बाद आ रहा है, ये एग्जीक्यूटेबल पार्ट आ रहा है। इसमें एसक्यूएल की एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, पीएल एसक्यूएल की एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट सारी की सारी, ये सारी की सारी जो है वो एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में ही लिखी जाएंगी और यहीं पे एग्जीक्यूट होंगी। जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वन लाइन आफ्टर द अदर एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। सिर्फ जो बिगिन कीवर्ड है वो ओरेकल इंजन को ये बता देगा कि एग्जीक्यूटेबल सेक्शन स्टार्ट हो गया है और उसकी जो नेक्स्ट लाइन से आप उस कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एग्जीक्यूट एक्सेप्शन सेक्शन। एक्सेप्शन सेक्शन के लिए हमें आगे पढ़ना भी है इसकी डिटेल। वैसे एसक्यूएल और पीएल कोड टू हैंडल एरर्स दैट मे अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक। अब क्या होता है कि अगर तो आपका एसक्यूएल है, उसमें अगर कोई एरर आती है, आप देखते हो उसमें एरर कोड नंबर आ जाता है, और समटाइम जो लैंग्वेज लिखी होती है ना वो आपको क्लियरली ये नहीं बताती है कि एरर क्या आया। कई बार तो आप समझ जाते हो कि हाँ यार इसमें ना सिंटैक्स का इशू है इसलिए वो लिखा हुआ है उस पर, और कई बार जो एरर आती है वो आपको क्लियर नहीं होती है। सो इन केस ऑफ एक्सेप्शन सेक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएल एसक्यूएल, एक्सेप्शन में क्या करते हैं हम, कुछ एक जो एरर्स आ सकती हैं उन एरर्स के करस्पॉन्डिंग कुछ मैसेजेस जो है वो यूजर अंडरस्टैंडेबल मैसेजेस आप उसको एक्सेप्शन सेक्शन में लिख देते हो। उससे होता क्या है कि यूजर का कोई एरर आता है तो उसको इंस्टेड ऑफ के एक वेग सा मैसेज आए जो कि अंडरस्टैंडेबल ना हो, जो कि ऑलरेडी एसक्यूएल में आता ही है, उसकी बजाय उसको एग्जैक्ट मैसेज आ रहेगा कि ये चीज नहीं एग्जिस्ट कर रही। जैसे कि एग्जांपल, आपने एक सिलेक्ट क्वेरी चलाई बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले में नहीं आया, तो वहां पे एम्प्टी टेबल आ रहा है। अब जब एम्प्टी टेबल आ रहा है तो उस केस में आपको ये नहीं समझ लगती कि यार मेरी क्वेरी गलत है, तो आप क्या करते हो कि उसमें बार बार चला के देखते हो बट उसका रिजल्ट नहीं आता, बिकॉज आपकी क्वेरी ठीक है बट जो कंडीशन आपने लगा रखी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रिकॉर्ड उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, इसलिए वो एम्प्टी रिकॉर्ड होता है। और एम्प्टी रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि एरर है, इट इज एक्चुअली योर क्वेरी हैज बीन एग्जीक्यूटेड बट it was not able to fetch any record. So कोई भी रिकॉर्ड जो है वो फैच नहीं कर पाया। So एक्सेप्शन सेक्शन में आप यही करते हो कि आप ना एरर्स जो हो सकती है ना उन एरर्स को आप जो है एक्सट्रैक्ट करते हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर एरर मैसेजेस दे देते हो। तो इसमें लास्ट पे एंड और उसके बाद सेमीकोलन मींस जब आपका ये भी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एंड के बाद ओरेकल इंजन को पता लगता है कि अब हमें और एग्जीक्यूशन नहीं करनी है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पीएल एसक्यूएल ब्लॉक। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। Anyone who wants to ask question, or you can write even clear message over here. Few of you can write it over here. Okay, then I'll move further. पीएल एसक्यूएल का सारे ब्लॉक स्ट्रक्चर्स की एक्सप्लेनेशन में एक एक करके। डिक्लेरेशन सेक्शन था जो कि हम डिक्लेयर सेक्शन भी कह देते हैं। कोड ब्लॉक्स स्टार्ट विद द डिक्लेरेशन सेक्शन इन विच मेमोरी वेरिएबल्स एंड अदर ओरेकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड एंड इफ रिक्वायर्ड इनिशियलाइज। एक तो डिक्लेयर करने हैं, डिक्लेयर का मतलब है एक तो वेरिएबल नेम हो गया, उसके बाद उसकी डाटा टाइप होगी और साइज वगैरह भी हो गया उसका। अगर उसमें उसको इनिशियलाइज करना है किसी भी
कांस्टेंट वैल्यू से, तो वो भी यही हो सकती है कि अगर रिक्वायर्ड है तो आप इनिशियलाइजेशन करो, अगर नहीं रिक्वायर्ड हो सिंपली डिक्लेरेशन भी चलेगी। वंस डिक्लेयर्ड दे कैन बी यूज्ड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन, और जो भी चीज आप उसमें डिक्लेयर करते हो उस डिक्लेरेशन सेक्शन में उसको आप पीएल एसक्यूएल के थ्रू एसक्यूएल में भी उसको यूज कर पाओगे, एसक्यूएल की कमांड्स में भी आप यूज कर पाओगे, और उसके थ्रू डाटा मैनिपुलेशन के लिए भी आप उसको वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो पहला सेक्शन हो गया डिक्लेयर सेक्शन। सेकंड इज योर बिगिन सेक्शन। It consists of a set of SQL and PL/SQL statements which describe processes that have to be applied to the data। अब इसमें SQL और PL/SQL statements दोनों होंगी, प्लस इसमें वो प्रोसेसेस भी होंगे जो कि आप डाटा को अप्लाई डाटा के ऊपर अप्लाई करते हो। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? थर्ड सेक्शन इज योर एक्सेप्शन सेक्शन। इसमें पहले भी बताया था कि दिस सेक्शन डील्स विद हैंडलिंग ऑफ एरर्स दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स which make up the PL SQL code block। Errors can arise due to your syntax error, logic error और validation rule violation, किसी भी तरह हो सकते हैं। एक्सेप्शन सेक्शन का मेन रोल ये रहता है ताकि जो यूजर है उसको कुछ ना यूजर डिफाइंड या यूजर अंडरस्टैंडेबल मैसेजेस डिस्प्ले हो। ऐसा ना हो कि जो मैसेजेस आ रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल ही ना हो और वो एरर दे रहा है बट द यूजर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एरर है कैसे की। तो इसलिए एक्सेप्शन सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहता है कि यूजर जो प्रोग्रामिंग कर रहा है वो ये भी प्रिडिक्ट करे कि किस तरह के एरर हो सकते हैं और उन एरर्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर यूजर अंडरस्टैंडेबल मैसेजेस कौन से डिस्प्ले करवाने हैं, वो ही रोल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो भी जो है प्रोग्रामर का ही रोल रहेगा। तो लास्ट सेक्शन इज योर एंड सेक्शन, दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर PL/SQL ब्लॉक। हाँ जी क्लियर है बेटा? देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो PL/SQL के ब्लॉक स्ट्रक्चर में यू कैन आस्क मी, otherwise you can write down message as clear। Okay, I'll see to it। Okay, if it's clear then I'll move further। PL/SQL data types। Now the default data types that can be declared in PL/SQL are char, then your this date, number and boolean। These are the default data types that are normally used in your PL/SQL। so उसके लिए आपको क्लियर पता होना चाहिए कौन कौन सी ऐसी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं जो कि हम एक एज सच किसी भी उसमें PL/SQL की प्रोग्रामिंग वाले में यूज कर पाएंगे एंड दे मैच विद द SQL। यू नो कि हमने ये सारी चीजें इवन जो तीनों ये वाले डाटा टाइप्स हैं SQL में भी रहेंगी, तो इसमें भी वही है। अदरवाइज तो यूज करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज अल्टीमेटली इसका बेस तो वही है ना जो हमारा SQL है, इसलिए इसमें सेम तरह की डाटा टाइप्स रहेंगी। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, हमें इसमें मैच करना पड़ेगा SQL के साथ प्लस टेबल्स के साथ। वो आगे हम जब जैसे जैसे प्रोग्रामिंग पार्ट को आगे इंक्रीज करते रहेंगे आप उसे अंडरस्टैंड कर लोगे। नाउ द पर्सन टाइप एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स फॉर फर्दर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन मींस कि जो SQL में आपने डाटा टाइप की है वही सेम अगर आप डाटा टाइप डिक्लेयर करना चाहते हो किसी भी वेरिएबल का PL/SQL पार्ट में या PL पार्ट में, तो उस केस में आपको परसेंट टाइप जो कीवर्ड है वो यूज करना पड़ेगा। और PL/SQL नॉर्मली इसको परसेंट टाइप को लिखता है, कैसे लिखता है वो आगे दिया हुआ है, कैन यूज परसेंट टाइप फॉर integrating the data type that is going to be used in PL/SQL with the fields data type in any of the tables used in SQL। जो आपने SQL में टेबल क्रिएट किए उसमें किसी भी फील्ड का जो भी डाटा टाइप आपने डिक्लेयर किया था उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए परसेंट टाइप एट्रीब्यूट यूज होता है। इज इट क्लियर?
Okay, then I'll move further. Attribute to declare variables based on definition of columns in the table. जो भी कॉलम की डेफिनेशन थी उसके ऊपर बेस्ड आप PL/SQL में ही डाटा टाइप उसकी डिक्लेयर करोगे. Person type declares a variable or constant to have same data type as that of previously defined variable or a column in a table or in a view. अब जो वैसे तो देखा जाए हमारे पास अलग से डाटा टाइप्स अवेलेबल भी है, नंबर है, कैर है, देन डेट है या बुलियन है. हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम जो है पर्सन टाइप एट्रीब्यूट के बिना डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल को नंबर, कैर, डेट या बुलियन डिक्लेयर कर सकते हैं. सेकंड इज कि हमें ये करना है कि जो भी डाटा टाइप हमने टेबल को क्रिएट करने वक्त एसक्यूएल में जब टेबल क्रिएट किया था उसमें किसी भी फील्ड को जो डाटा टाइप दी थी वो सेम चाहते हैं हम PL/SQL में यूज करना. तो उसके लिए पर्सन टाइप जो है आपको इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा ताकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा उसका डाटा टाइप था. आपने उसको पर्सन टाइप यूज करते हुए उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया और उसकी डाटा टाइप भी जो PL/SQL में कोई वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करना है उसको आप एज सच असाइन कर सकते हो. आगे इसकी आ जाएगी कि कैसे करते हैं इसको. क्लियर है यहाँ तक बेटा? इसकी अगर इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? हाँ जी, एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? नाउ द वेरिएबल पार्ट. व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल आपने C++, C में भी पढ़ा होगा. वेरिएबल इज दिस जो आपका वेरिएबल वर्ड यूज होता है उसका बेसिकली होता है ये उसको नाम दिया जाता है जो कि किसी करेक्टर को या किसी स्पेस को, आपकी स्टोरेज स्पेस को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, ड्यूरिंग यूसेज. सो वेरिएबल इसी टर्म यूज होता है. सो डेफिनेशन तो वही रहेगी, इसके जो रूल्स हैं वो भी वही रहेंगे जो C++ में यूज होते हैं. वेरिएबल्स इन PL/SQL ब्लॉक आर नेम्ड वेरिएबल्स. नेचुरली इसका नाम होगा. जैसे आपने सपोज सिंपली ये कर लेते हैं, अगर आपने सम ऑफ टू नंबर्स करने हैं तो एक एक जो वेरिएबल A डिक्लेयर करना है, दूसरा B करना है. अब A का भी डाटा टाइप नंबर होनी चाहिए, B की भी नंबर होनी चाहिए डाटा टाइप, और C जिसमें कि ऐड करके A+B का जो रिजल्ट आए उसकी भी डाटा टाइप नंबर होनी चाहिए. तो वो वेरिएबल नेम्स है. तो सिमिलरली ओवर हेयर इन PL/SQL सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल तो वही चीज़ है जो आपकी पहली प्रोग्रामिंग में यूज हुआ, सेम रहा. उसका जो नेम के रूल्स है वो भी सेम है कि सबसे पहले वो करेक्टर से ही बिगिन होना चाहिए और उसका मैक्सिमम जो साइज है इन केस ऑफ PL/SQL इट इज 29 करेक्टर्स हियर. एंड असाइनिंग ऑफ ए वैल्यू टू ए वेरिएबल कैन बी डन इन टू वेज. दो तरह से असाइनमेंट की जा सकती है जब आपने किसी भी वेरिएबल को या तो वैल्यू असाइन करनी है कांस्टेंट या कुछ और असाइन करना है. एक है कोलन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर. इसमें अब देखो सिंपली इक्वल टू नहीं है, कोलन इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर ओवर है. एक तो ये मेथड है. सेकंड आता है आपने सेलेक्टिंग और फैचिंग टेबल डाटा वैल्यूज इनटू वेरिएबल. कहीं से आपने डाटा को फैच किया जो कि टेबल में आपने सपोज स्टूडेंट डाटा डाला हुआ है, उसमें BCA 4th के A1 के स्टूडेंट सारे हैं. अब उस केस में क्या कर रहे हो, आपके BCA 4th के A1 के स्टूडेंट्स के सारा डाटा जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इन अ वेरिएबल. तो वो भी इसमें यूज होता है, वो अलग मेथड है. वो जैसे आप इसकी प्रैक्टिकली यूज करोगे आगे एक एग्जांपल्स के साथ बताते जाएंगे. उसमें दोनों मेथड से बता देंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर से कैसे आपने डिक्लेयर करना है और फैच करके डाटा जो है वो किस तरह आपने एक वेरिएबल के की जो वैल्यूज हैं उसको असाइन करनी है. हाँ जी, वेरिएबल्स तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक देखो, अगर कोई क्वेश्चन है नहीं तो राइट डाउन योर क्लियर एज इन योर चैट. हाँ जी, एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? ओके देन आई विल मूव फर्दर. अच्छा, आपने C++ में सी इन और सी आउट पढ़ा होगा. अगर आपने सी पढ़ी है तो उसमें आपने प्रिंटफ और स्कैनफ पढ़ा होगा. जो प्रिंटफ टर्म है वो मैसेज को डिस्प्ले करने के काम आती है स्क्रीन के ऊपर, और जो सी आउट टर्म है वो भी आपकी जो बेसिकली मैसेज को डिस्प्ले करवाने के काम आती है. तो आप उसी तरह, क्योंकि यहाँ पे भी आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो आपको कोई मैसेज डिस्प्ले अगर स्क्रीन पे करना है तो उसके लिए यहाँ पे भी इन योर PL/SQL यू हैव योर सिंटैक्स. दैट मीन्स आपके कीवर्ड्स, सॉरी कीवर्ड्स. यहाँ कीवर्ड्स दो हैं. एक है DBMS अंडरस्कोर आउटपुट और दूसरा है पुट अंडरस्कोर लाइन, और ये इकट्ठा मिलके ही आप कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हो. DBMS underscore output is a package that includes a number of procedures and functions
that accumulate information in a buffer so that it can be retrieved later. अब DBMS आउटपुट क्या है, एक पैकेज है जिसमें कि बहुत सारे प्रोसीजर और फंक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और ये जो प्रोसीजर्स और फंक्शंस हैं ये क्या हेल्प करते हैं, एक बफर क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. बफर मीन्स अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया, और उस टेम्पररी स्टोरेज एरिया में ये कोई चीज़ सेव कर लेते हैं ताकि बाद में उसको रिट्रीव कर सकें, उसको बाद में एक्सट्रैक्ट कर सकें. एंड दीज फंक्शंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेजेस टू द यूजर. और यही जो फंक्शंस हैं जो आपने डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट पैकेज यूज करते हुए जो आप यूज कर रहे हो, उनमें से ही कुछ एक फंक्शन जो है यूजर को मैसेजेस डिस्प्ले करने के लिए आपको हेल्प करते हैं. सेकंड आता है पुट अंडरस्कोर लाइन. इट एक्सपेक्ट्स अ सिंगल पैरामीटर ऑफ द कैरेक्टर डाटा टाइप एंड इफ यूज्ड टू डिस्प्ले अ मैसेज इट इज अ मैसेज स्ट्रिंग. अब ज्यादातर क्या होता है कि हमने जो मैसेजेस डिस्प्ले करने हैं वो ज्यादातर कैरेक्टर डाटा टाइप ही होती है. अगर हमने कैरेक्टर डाटा टाइप को यूज करना है तो उसमें पुट अंडरस्कोर लाइन वुड बी अ पैरामीटर जो कि कैरेक्टर डाटा टाइप को के मैसेजेस को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है. और ज्यादातर मैसेजेस को भी स्ट्रिंग होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. जैसे आपने लिखा एंटर वैल्यू ऑफ ए, सो ये आपकी एक स्ट्रिंग है, तो उसके लिए आपको पुट अंडरस्कोर लाइन जो है एज सच फंक्शन या जो है वो यूज होगा डिस्प्ले करवाने के लिए यूजर को एक मैसेज. होगा कैसे, क्योंकि हमने अभी फिलहाल सिर्फ अभी हम सिंटेक्स पढ़ते जा रहे हैं और वो कर रहे हैं. जब हम एक प्रोग्राम मिनिमम करके देख लेंगे कैसा डिस्प्ले आएगा, वो नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक आधा दिखाऊंगा भी और आपके साथ शेयर भी कर लेंगे हम फाइल. उसमें आपको क्लियर होगा कि आप इसमें dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन उसके आगे मैसेज को किस फॉर्म में आप डिस्प्ले करवाते हैं. To display the messages to the user, the server output should be set to on. अब इसमें एक और important factor रहता है, set server output on, set server output off. Normally जब आप Oracle start करते हैं तो server output हमेशा off stage में होती है. जब आप उसको मैसेज को dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन में कोई मैसेज लिखते हो और वो मैसेज पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको अंडरस्टैंड करना है कि सेट सर्वर आउटपुट ऑन नहीं है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा कोई एरर मैसेज देगा ही नहीं. वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, बट आपका जो सेट सर्वर आउटपुट ऑन ना होने के कारण यूजर को प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले स्क्रीन पे नहीं होगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सेट योर सर्वर आउटपुट टू ऑन बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग put underscore line as your this function. So इसमें भी वही दिया हुआ है. तो display messages to the user, the server output should be on, should be set to on. Server output is a SQL star plus environment parameter that displays the information passed as a parameter to the put underscore line function. ये आपको बेसिकली SQL का जो स्टार प्लस का एक ऐसे का एनवायरमेंट राइट कर रहा है जिसमें put underscore line function के थ्रू आप जो आउटपुट है वो दिखाते हो बाहर. और सेट सर्वर आउटपुट ऑन या ऑफ, ये दो मेथड्स हैं. नॉर्मली इट इज ऑफ. आपने जब भी कोई भी PL/SQL प्रोग्राम लिखना है तो आपको सबसे पहले सेट सर्वर आउटपुट ऑन ही करना पड़ेगा और उसके बाद सेमीकोलन होना बहुत जरूरी है. एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? Just check if you are having any question, you can ask me. And if it is clear, I'll move further. Okay then. अब जैसे आपकी C++ में कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, हाँ जी. एनीवन फ्रॉम योर ग्रुप, आपको ये आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन विजिबल है? बिकॉज यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहा है, इंटरनेट की थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है. इफ इट इज क्लियर देन आई विल मूव फर्दर. हाँ जी, एनीवन ऑफ you can write down if you are able to listen to me and the screen is also visible to you. Okay, Kush. That means I am audible also and the screen is also visible. It's fine. Now conditional control statements, जैसे कि आपने conditional control statements C++ में भी पढ़ी थी, if else आते हैं, और इसी तरह लूपिंग स्टेटमेंट्स आती हैं, उसमें भी आती हैं, वाइल, फॉर, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा. सो पहले कंडीशनल कंट्रोल सिस्टम दिस स्टेटमेंट्स PL/SQL की जो सिंटैक्स है वो पढ़ लेते हैं. इसमें हम देखो इफ एल्स का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है. इफ देन उसके बाद कंडीशन,
सीधा लिखनी है, और उसके बाद देन इज अनदर कीवर्ड, और उसके बाद एक्शन। एल्स इफ में देखो, इसके स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। एल्स इफ में ELSEIF नहीं है, ELSIF है। दिस इज द सिंटेक्स। इसमें क्लियर कट बताया गया कि कीवर्ड जो है वो एल्स इफ ELSIF है, नॉट ELSEIF। और एल्स इफ में सेकंड कंडीशन, देन एक्शन। एल्स अगर ये कोई भी ऐसा एल्स इफ में नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही और इफ में नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो फिर बाय डिफॉल्ट एल्स वाली पार्ट चलेगा, एक्शन चलेगा, और लास्ट में एंड इफ करना। और एंड इफ भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप इफ लूप को बंद कर रहे हो और उसके बाद सेमीकोलन होना जरूरी है। एंड इफ लूप क्या इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड इफ बेसिकली ये कंडीशनल पार्ट है, उसको बंद करना है। इट्स नॉट अ लूप, बेसिकली कंडीशनल पार्ट को बंद करने के लिए लास्ट में सेमीकोलन रिक्वायर्ड है। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ योर इफ एल्स इफ। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा? देखो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? देन आई विल मूव फर्दर। नेक्स्ट देखते हैं हम सिंटैक्स वाइल का और फॉर का। मैंने ऑलरेडी बताया था लूपिंग भी है, जैसे वाइल C++ या सी में यूज होता है लूपिंग के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी यूज हो रहा है। वहाँ पे भी फॉर यूज होता है, यहाँ पे भी फॉर हो रहा है, बट ओनली थिंग इज द सिंटैक्स वुड बी डिफरेंट। यहाँ पे कीवर्ड डिफरेंट होंगे, सिंटैक्स डिफरेंट होगा। सो पहले देख लेते हैं वाइल। वाइल कंडीशन लूप इज अनदर कीवर्ड, उसके बाद उसके अंदर एक्शन और एंड लूप। अब इसमें ब्रैकेट्स नहीं आ रही जैसे C++ में होती है, इसमें डायरेक्टली लूप एंड एंड लूप जो है वो बता रहा है, उसके बीच में जो भी एक्शन, जो भी आपने कमांड लिखनी है उसके बीच में आएंगी। वाइल कंडीशन, क्योंकि कंडीशन पहले चेक हो रही है, इसका मतलब ये है ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आप लूप में जाओगे और लूप के अंदर जितना भी एक्शन में आपने जो स्टेटमेंट्स लिख रखी है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। एंड व्हेन ऑल दीज कंडीशंस हैव बीन मेट, कंडीशनल पार्ट जो वाइल का वो सारी हो जाएंगी पूरी, तो उसके बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर योर फॉर लूप, फॉर में हमने वहां पे भी पढ़ा था i इक्वल टू 0 से लेके लेट्स से i लेस देन 10, i++। हमने C++ में और C में ऐसे ही पढ़ा हुआ है, वहां उसका सिंटेक्स ऐसे कहता है। अब इसमें यहाँ कह रहा है फॉर वेरिएबल इन स्टार्ट डॉट डॉट एंड, दैट मीन्स कोई भी वेरिएबल वैल्यू, लेट्स से फॉर i इन 1 डॉट डॉट 10, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज होनी चाहिए किसकी? i वेरिएबल की। लूप स्टार्ट किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन मींस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दिया और एंड लूप कर दिया। दैट मींस ये जो स्टेटमेंट्स हैं हर बारी i की वैल्यू 1 से शुरू होगी और हर बार इसका इंक्रीमेंट होता रहेगा और उसको 10 तक, क्योंकि हमने 1 to 10 लिया है तो एक लूप 10 बारी चलेगी। सो इसका सिर्फ सिंटेक्स चेंज हुआ है। हाँ जी, यहाँ तक देखो सिंटेक्स क्लियर है। पहले ये दोबारा देख लो, इफ एल्स इफ का और वाइल और फॉर का देख लो। हाँ जी, ये क्लियर है बेटा? बेटा अगर ये क्लियर है तो यहीं तक मैं इसको छोड़ रहा हूँ, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग कर्सेस मैं क्या करूँगा नेक्स्ट टाइम आपको ना कुछ एक प्रोग्राम्स रिलेटेड टू योर पहले इफ एल्स, वाइल, फॉर एंड सिंपल जो डिस्प्ले मैसेजेस वाले, ये अगली बारी आपको 2 to 3 में ही हम जो नेक्स्ट टाइम होगा लेक्चर उसमें ये दिखाऊंगा, और आप एक एक प्रोग्राम उसको आप कॉपी भी कर पाओगे और मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा वो फाइल। ठीक है बेटा? तो मैं फिलहाल के लिए ये लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ।